Hello friends. Last time we had done with a topic which is rightly called as void agreements. Okay. Last topic or last pointer of void agreements was agreements which are opposed to public policy. मैंने आपको पहले भी कहा था, okay, कि agreements which are opposed to public policy, what will happen is have certain pointers that you need to fulfill. So we are going to understand that particular pointer. So agreements which are opposed to public policy. Let us deal with this. I told you the meaning what was opposed to public policy. Anything which is against the society, which will be opposed to public policy. Okay. The first point is stifling prosecution. Stifling prosecution is nothing but interfering in the matters of court of justice. I will just put it down so that you understand. This is interfering in the justice of court. So कोर्ट के किसी भी मैटर में इंटरफियर करना इज बेसिकली स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. फाइन. Like suppose if you are playing with any kind of an evidences or manipulating with evidences that are related to the court. मतलब किसी भी तरह से तुम कोर्ट के evidences के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे, so that is nothing but interfering in the justice of the court. ठीक है, उसको manipulate करोगे. That is not correct. You are not supposed to interfere in the justice of the court. So that is nothing but stifling prosecution. ठीक है. Second point is sale of public office. If you are a government servant, ठीक है, and after a particular point of time or a period of time you are getting retired. So once you get retired, what will happen is, तुझे लगता है कि तू रिटायर हो गया तो ऑफिस बेच के चला जाएगा. Is it clear? That is not possible. That doesn't belong to you. That office is basically belonging to the government. Is it clear, everybody? And when it belongs to government, you have to return it back because in place of you, some other person is going to take over. So this is sale of public office. Is it clear, everybody? This is opposed to public policy. You are not supposed to sell any kind of public office. You cannot sell any kind of public office as it does not belong to you. It belongs to somebody else, that is our government. And now in your place someone else is going to come. So this is what I'm talking about, sale of public office. So the first point was stifling prosecution. The second point is sale of public office. Champerty and maintenance. Champerty and maintenance का मतलब होता है एक छोटा सा वर्ड जो हम लोग जनरली जानते हैं जिसको, that is commission. Is it clear, everybody? Suppose if you are dealing with any kind of a case, is it clear, everybody? किसी भी तरह का कोई केस में आप डील कर रहे हो. I am your lawyer and I am fighting a case for you. Fine. And then you tell me कि ये केस के लिए जो भी है, I am going to charge a fees of rupees 1 lakh. मैं 1 lakh rupees का फीस आपके पास चार्ज करने वाली हूँ. So if I am going to charge a fees of 1 lakh, वो केस को और जल्दी से फाइट करने के लिए, जल्दी से जस्टिस लाने के लिए या सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, you tell me कि I am going to give you the 10% of the property जो आप हमको जितवा के दोगे. मतलब केस अगर हमारे फेवर में आया तो वो प्रॉपर्टी का केस है, तो उसका 10% का शेयर हम आपको देंगे आपके फीस के साथ. मतलब बेटा मुझे क्या मिलने वाला है, फीस प्लस कमीशन. आर यू गेटिंग इट? सो आई फाइट इट वेरी नाइसली एंड वेरी एफिशिएंटली. मैंने जी जान लड़ा लिया वो केस को जीतने के लिए, एंड नाउ द केस इज इन आवर फेवर. इज इट क्लियर? You give me a check of rupees 1 lakh as my fees amount. Is it clear? But you have not paid me what? The commission. Definitely if you have not paid me the commission, I cannot take you to the court. Is it clear? Fighting for the same कि हाँ भाई फीस मिला है पर कमीशन नहीं मिला है. Now you are supposed to pay me. I cannot take you to the court. I cannot fight a case against you. The reason is this: you cannot charge being a professional person. What you can charge being a professional person is this. Is it clear? तो आप कहीं पे भी ये चीज को जो है वो चार्ज नहीं कर सकते हो. The commission cannot be charged from the other person. What you can charge is only the fees amount. So this is what I'm talking about champerty and maintenance. Is it clear, everybody? तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ऑटोमेटिकली वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जाएगा और वो वर्ड एग्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है? ऐसा क्यों हुआ है ये? बिकॉज आपको पता है कि प्रोफेशनल लेवल पे व्हाट यू कैन डू इज ओनली टेक द फीस फ्रॉम द प्रोफेशनल, फ्रॉम द क्लाइंट और योर कस्टमर और एनीबडी, बट यू कैन नॉट टेक दिस अमाउंट. ये जो भी है दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ये नहीं किया जा सकता. समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट चैम्पटी एंड मेंटेनेंस. Agreements with alien enemy. Is it clear? Please try and understand what is alien enemy out here. बेटा alien enemy का मतलब हमने चैप्टर 1 में के रिकॉर्डिंग में देखा था. It is nothing but warring nations.
Warring nations is when two countries are fighting with each other, they are into war with each other. तो एक दूसरे के साथ उनको अपने सारे ट्रेडिंग रिलेशंस को खत्म करना पड़ेगा. So when two countries are at a war, they have to finish all the trading relations among each other. So agreements with alien enemy का मतलब होता है warring nations. Like suppose if India and Pakistan are at war, ठीक है, तो इंडिया वालों ने अगर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई ट्रेडिंग रिलेशंस किया होगा तो उनको वॉर खत्म होने तक उसको रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा. वॉर खत्म होने के बाद उनको गवर्नमेंट का परमिशन लेना है. अगर गवर्नमेंट ने उनको परमिट किया तो वो अपने ट्रेडिंग रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे या तो फिर उनको बंद करना पड़ेगा. इज अ क्लियर एवरीबॉडी? सो अग्रीमेंट्स विद एलियन एनिमी. तो वॉर चल रहा है और ट्रेडिंग रिलेशंस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है अंदर वाला पब्लिक. इज अ क्लियर एवरीबॉडी? सो दैट इज रॉन्ग. सो इट विल कम अंडर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तुम सोसाइटी के खिलाफ जाके कुछ कर रहे हो एंड दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर वर्ल्ड एग्रीमेंट. ओके. So agreements with alien enemy is whatever agreements you are doing with your warring nations. So that is nothing but agreements with alien enemy. ठीक है? Trade agreements. Trade agreements मैंने आपको लास्ट वाले रिकॉर्डिंग में बताया था what is trade agreements और agreement in restraint of trade. मैंने आपको दो फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया था जहाँ पे एक के पास शिप है, वो बोल रहा है अभी तू संभाल, बट तू एक माउंटेन जोन में उसको मत लेके जा. इज अ क्लियर एवरीबॉडी? अगर तू वहाँ पे लेके जा रहा है तो तेरे और मेरे बीच के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे. वो फ्रेंड उसकी बात नहीं सुनता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में वो उसको लेकर जाता है अपने साथ में, एंड देन देयर इज एन वर्ड एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज. सो इट इज द सेम थिंग दैट इज ट्रेड एग्रीमेंट्स. सो एनी एग्रीमेंट व्हिच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, आप लोग जो भी ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे, उसको वायलेट करने की कोशिश करोगे, सो दैट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट. सो अगेन इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ऑब्वियस है ना कि अगर तुम सामने वाले पार्टी के साथ किसी भी ट्रेडिंग रिलेशंस में एंटर करते हो तो आपको वो ट्रेडिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री होता है वो एक्सेप्ट नहीं करना है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज अग्रीमेंट क्रिएटिंग इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी. इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी का मतलब है सपोज देयर आर टू पार्टीज, वी टेक फॉर एग्जांपल, एक है प्रिंसिपल और दूसरा है एजेंट. ओके. So there are two parties for creating interest against duty. One is the principal and other one is an agent. तो प्रिंसिपल और एजेंट में डिफरेंस क्या हो जाता है? प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड द एजेंट टू परफॉर्म फॉर हिम. मतलब इसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, इसके बिहाफ पे कौन परफॉर्म करने वाला है? एजेंट. अभी एजेंट क्या करता है? इसका नाम इस्तेमाल करके सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश करता है. So whenever any agent is trying to earn any kind of a secret profit using the name of the principal, so it becomes creating interest against duty. Is it clear? तो वो हो जाता है creating interest against duty. आप ये नहीं कर सकते. Is it clear? Because अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम इस्तेमाल करके किसी भी तरह का कोई ड्यूटी क्रिएट किया है या किसी भी तरह का कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको इसको रिटर्न करना पड़ेगा. He cannot keep that particular thing with himself. So this is agreements creating interest against duty. Okay. Marriage brokerage agreements. शादी के टाइम पे there is nothing between the husband and wife that they have pre-decided. कि suppose if I fight with you or I have any kind of an fight with you or a dispute with you, is it clear everybody? Definitely I'm going to pay you such amount of compensation. Is it clear? ऐसा कुछ decide नहीं होता है. But ये obvious है if there is a break of marriage between the husband and wife, the husband is bound to pay the alimony amount to the wife. Is it clear everybody? So this is what I'm talking about, marriage brokerage agreements. I told you there is nothing pre-decided between the parties or the husband and wife. जो होता है उसके बाद डिसाइड होता है, कोर्ट इंटरफियर करता है और फिर कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो दोनों पार्टीज को फॉलो करना पड़ेगा. So that is marriage brokerage agreements. And the next point says agreements to create monopoly. बेटा पुराना वाला जो एक्ट है that was rightly called as MRTP Act. What is the full form of MRTP Act? That is Monopolistic and Restrictive Trade Practice Act. तो उसको MRTP Act बोलते हैं. ठीक है. Now this act is not into picture. ये निकल चुका है. इसके जगह पर Competition Act 2002 आ चुका है. Now what is the difference between the two acts? पुराने एक्ट में in the case of MRTP Act, if you were able to create a monopoly, is it clear? You were not allowed to do so. करना allowed नहीं था. But अभी Competition Act के हिसाब से अगर तेरे को monopoly create करना है तो तू कर सकता है, पर तेरे monopoly create करने के वजह से is it clear everybody? किसी को भी उसका नुकसान या unfair चीजों के तरफ से नहीं होना चाहिए. That means
the competitors, the customers, is it clear? The wholesalers, the retailers, the other sellers, the manufacturers, उनको उस चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए, is it clear? तो अगर तेरे को कंपटीशन करना है तो तुम करो, बट वो फेयर तरीके से होना चाहिए. It should not be an unfair competition. Is it okay? So this is MRTP and this is Competition Act 2002. ये अभी निकल चुका है. Now what you are having is Competition Act 2002. So this is agreement to create a monopoly. Is it clear everybody? What is agreement to create a monopoly? अगर आप monopoly create करते हो और वो unfair तरीके से है, किसी को नुकसान हो रहा है आपके monopoly create करने से, then you can have recourse to public policy और फिर वो void agreement भी हो जाएगा. और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर it will not be a void agreement, it can be a valid agreement. Just have a short revision with me. Agreements which are opposed to public policy, ये void agreement का main head था और उसके अंदर भी बहुत सारे types आते हैं जो आज हमने discuss कर लिए हैं. जरा ध्यान दो please. It is rightly called as stifling prosecution. What is stifling prosecution? ब्रैकेट में लिखा है मैंने, interfering in the justice of court or the matter of court. अगर आप कोर्ट कचहरी के मैटर में इंटरफियर करने की कोशिश करते हो, so that is nothing but stifling prosecution and you do not have a right to do so. Second is sale of public office. Sale of public office का मतलब होता है कि if you are an employee or if you are any kind of an individual, और अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो रिटायर्ड होने के बाद ऑफिस बेच के नहीं जा सकते हो, बिकॉज दैट डजंट बिलोंग टू यू, इज इट, दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. तो आपके पास जो है वो चीजें आप रखो और आपके पास जो नहीं है वो आपका बिलोंग नहीं करता है, आप उसके साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो. सो यू आर नॉट सपोज्ड टू सेल एनी काइंड ऑफ इन पब्लिक ऑफिस, सो दैट इज अपोज्ड टू पब्लिक ऑफिस. ओके. Champerty and maintenance. Champerty and maintenance में what happens is it is a type of a commission that you can charge. Is it clear everybody? मैंने आपको बोला इफ यू आर अ प्रोफेशनल आप लोग सिर्फ फीस चार्ज कर सकते हो, आप कमीशन चार्ज नहीं कर सकते हो. सो अंडर चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस इफ यू आर एन इंडिविजुअल यू कैन ओनली चार्ज फीस बट यू कैन नॉट चार्ज एनी काइंड ऑफ एन कमीशन. और अगर आप ऐसा करते हो तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में जाएगा एंड दैट विल बी एन वॉइड एग्रीमेंट. Agreements with alien enemy. Alien enemy is nothing but warring nations. और warring nations का मतलब क्या बोला मैंने? जब दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर पे है तो वो उस टाइम पे एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस नहीं कर सकते हैं, और अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं सो दैट इज गोइंग टू लैंड समवेयर एल्स. इज इट क्लियर? लैंड समवेयर एल्स का मतलब होता है कि वो लोग पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जाके कुछ एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या वो उनका अग्रीमेंट जो भी होगा वो वॉइड अग्रीमेंट होगा. फिर आता है ट्रेड एग्रीमेंट्स. ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. आप ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स के खिलाफ जाके कुछ करने की कोशिश करोगे तो फिर वो ट्रेड एग्रीमेंट्स में जाएगा. ओके. यू कैन नॉट डू दिस. अगेन द एग्जांपल ऑफ टू फ्रेंड्स जिसके पास शिप है और वो लोग उसके साथ डील कर रहे हैं. अग्रीमेंट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी में मैंने आपको प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बताया, जहां पे प्रिंसिपल का नाम इस्तेमाल करके एजेंट जो है वो अननेसेसरी का गलत फायदा उठाकर सीक्रेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहा है. So that is agreement creating interest against duty. फिर आता है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स. मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स का मतलब होता है कि आप अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो आपके बीच में जो भी ट्रेडिंग रिलेशंस है वो पहले से डिसाइडेड है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अगर वो पहले से डिसाइडेड है तो फिर व्हाट हैपेंस इज अचानक से अगर डिवोर्स हो जाता है, वो तो प्लान नहीं था ना बेटा, वो तो अचानक से हो गया. तो अगर वो चीजें पहले से ही प्लान्ड थी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, और फिर बाद में शादी होने के बाद एक साल उनका कुछ जमा, फिर एक साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया, तो व्हाट विल हैपन अगर उनका डिवोर्स हो गया है तो इट इज बाउंड कि हस्बैंड को एलिमनी देना पड़ेगा. अभी हस्बैंड ये नहीं बोल सकता कि शादी के टाइम पे तो हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया तो मैं तुझे पैसा क्यों दूं. बेटा ये मैटर ऑफ जस्टिस है, जहां पे लीगल मैटर्स के हिसाब से ये अगर कोर्ट में जाता है तो इफ एन हस्बैंड इज गिविंग अ डिवोर्स टू द वाइफ ही इज बाउंड टू पे द एलिमनी अमाउंट टू द वाइफ. और अगर वो ऐसा नहीं करता है definitely he is going opposed to public policy. So that is marriage brokerage agreements. फिर आता है agreement to create monopoly, जिसमें मैंने आपको बोला कि दो एक्ट है, that is MRTP Act and Competition Act 2002. MRTP Act अभी नहीं है, MRTP Act की जगह Competition Act 2002 ने ली है. MRTP Act में तू monopoly create नहीं कर सकता था, but under Competition Act 2002 अगर तेरे को monopoly create करना है तो तू आसानी से कर सकता है. Is it clear everybody? और इतना ध्यान रखना है कि तेरे मोनोपोली क्रिएट करने की वजह से किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, किसी के साथ भी कुछ अनफेयर ना हो. इज इट क्लियर एवरीबॉडी?
तो अगर किसी के साथ भी कुछ अनफेयर या गलत नहीं होगा, सो दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और अगर होगा तो दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और फिर वो वॉइड एग्रीमेंट में जाएगा. इज इट ओके? सो दिस इज अग्रीमेंट्स व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और उसके अंदर जो है ये सारे हेड्स आएंगे. We will just read aloud all heads once again. Stifling prosecution, sale of public office, championship and maintenance, agreements with alien enemy, trade agreements, agreements creating interest against duty, marriage brokerage agreements, agreement to create monopoly. ये सब किस में आएगा बेटा? agreements which are opposed to public policy, और agreements which are opposed to public policy किस में आता है? चलो आंसर करो फटाफट. वो आता है void agreements में. ओके, सो void agreements में आएगा agreements which are opposed to public policy, और public policy opposed to public policy में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है. Is it understood everybody? तो इसके साथ हमने void agreements का टॉपिक आज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया. एक बार देखो प्लीज, सो दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंटर्स. एक बार सारे पॉइंटर्स को लाउड में पढ़ना जब आप अकेले बैठे हो और ये वीडियो देख रहे हो. जस्ट गो थ्रू इट. ओके फ्रेंड्स, मैं एक और दूसरे टॉपिक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ. इफ यू हैव सीन दिस वेरी वेल, मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ, बार बार यही चीजें बोल रही हूँ कि प्लीज रिकॉर्ड करते जाओ रिकॉर्डिंग्स के लेक्चर्स का, जो भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो. यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन समवेयर इन द नोटबुक. अगर आप ये चीजें नोटबुक में लिखोगे तो आपको याद रहेगा. इज इट क्लियर? मैं अनसर्टेन एग्रीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा करने वाली हूँ. इसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, और अनसर्टेन एग्रीमेंट्स में एक ही चीज आती है जिसको बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इसको कहा जाता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, पहले देख लेते हैं व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Okay, this is contingent contract. It depends upon happening and non-happening of future uncertain event. Uncertain agreements में आता है contingent contract, और contingent contract का मतलब होता है it depends upon happening and non-happening of future uncertain event. मतलब कि वो चीज हो भी सकती है और वो चीज नहीं भी हो सकती है, जो पूरी तरह से अनसर्टेन है, तो फिर उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. इजी है. जैसे कि तुमने गुड्स मंगवाए हैं अमेरिका से, अगर शिप अमेरिका से इंडिया पहुंचा तो अग्रीमेंट होगा, पर अगर वो नहीं पहुंचा तो अग्रीमेंट नहीं होगा. इजी. तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है अगर अमेरिका से शिप इंडिया पे पहुंचा, सो दैट इज हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. अगर वो नहीं पहुंचा, सो इट इज नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? So it's very easy. So contingent contract is basically it depends upon happening and non-happening of future uncertain event. तो उसको contingent contract ऐसा कहा जाता है. Is it okay? We end the session today, everybody. It was nice meeting you. I hope you are watching the videos regular basis पे. One thing that you have to do is very important. Whatever recordings till date sir has sent you from representing Pankaj classes, you are going to record all that thing in a notebook. तो आप लॉ का एक बुक बनाओगे जहाँ पे जो भी रिकॉर्डिंग आप मेरे से सुन रहे हो वो सारे पॉइंटर्स को आप टॉपिक, लाइक सपोज अगर मैंने आज वर्ड एग्रीमेंट किया तो वर्ड एग्रीमेंट में हमको मिस ने कौन से टॉपिक्स दिए, कौन से पॉइंटर्स दिए, वो आप लोग पूरा लिस्ट करते हैं. इज इट क्लियर एवरीबॉडी?
आज के टॉपिक में आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में पूरा डिटेल्स में करने वाले हैं. इज इट ओके? सो सिर्फ आपको आज के लेक्चर में वॉइड एग्रीमेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है, उस पर लिखना है. ये हम वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में. ओके, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय एवरीवन.